Good morning, everyone, and welcome to CR International School Online Study System. How are you, dear student? I hope you all are fine and you are studying well. If you have any query in your mind, please contact on your WhatsApp. We will answer your questions. Today, we'll talk about the last, almost, we are going to complete the chapter. After this, we will be discussing about the conservation of the wildlife and the vegetation. Today, we'll talk about the importance of the vegetations. आज हम जो बात करेंगे we are going to study about the importance of the vegetation, how important is vegetation and wildlife for human being, and its threat, why the species are in threat. We are going to talk about all this. Before this, we have discussed about the wildlife. We have discussed about the variety of the vegetation found in India, and we have discussed about the different kinds of animals and species of the fishes and species of fish, birds, all that we have discussed yesterday. So we found that how diverse is wildlife in India found. So now it is important to understand why these species and the flora and the fauna is important for human being and for ecosystem. See, as we know that every species has its importance into the ecosystem. If being a human, we have our own importance into the ecosystem also. So today we are going to discuss a very formal discussion, that is what is the importance of the vegetation and the wildlife. So today we'll talk about the same thing, importance of vegetation and wildlife for human being. See, the question is very simple. If you study book, you can understand it very well. I have taken the points from the NCERT. So you can also write down this question without studying, because this is very general question to understand. Even though if we write some points from the book, then examiner will happy with you and you will be able to gain good marks. So let us understand. We get our crops from biodiverse. So देखिए flora and fauna helps in many ways. So how flora and fauna means vegetation and the wildlife, it helps human being in different ways. So first thing is that we get crops from biodiverse environment. So we as a human being totally depend on the vegetation. हम एक ह्यूमन बींग होने के नाते जो हम टोटली डिपेंड करते हैं, वी आर डिपेंड ऑन द वेजिटेशन, आवर फूडिंग, क्लॉथिंग, शेल्टर, एवरीथिंग दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर. हम सारी चीजें कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? नेचर से प्राप्त कर रहे हैं. स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द फूड. जो क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं, राइट, सीड्स को हम लोग शो करते हैं, फिर बहुत सारे सीड्स उसे जनरेट करते हैं, एंड दैट्स वो हमारा इस डाइवर्स जो एनवायरमेंट है, इकोसिस्टम है, उसी से हमें प्राप्त हो रही है. सो ये हमारे पास फूड का बेस है. सो हमें सभी तरह के फूड जो होते हैं, हमें वी आर गेटिंग फ्रॉम द वेजिटेशन. तो हमें वेजिटेशन से फूड प्राप्त होते हैं. देन मैनी मेडिसिनल प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लोरा. एज वी डिस्कस्ड डे बिफोर यस्टरडे दैट मेडिकल प्लांट्स के बारे में तो मुझे वो ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. वी आर गेटिंग सच रेयर मेडिकल प्लांट्स विच क्योर्स डिजीज, जो हमारे डिजीज को क्योर करते हैं, that we are getting from the vegetation. Like we're talking about that at present time we are using 500 types of the medical plants in regular use, and almost 2000 plants were discussed into the Vedas. आयुर्वेदा के बारे में हमने पढ़ा था. तो आयुर्वेदा के अंदर लगभग 2000 के आसपास ऐसे प्लांट्स के स्पीसीज के बारे में हमने पढ़ा कि दे हैव द मेडिकल प्रॉपर्टी. Few of them we know, जिनमें से कुछ जानते हैं, and that we are using at present time and continuously. So हमें फ्लोरा से क्या मिलता है? हमें वेजिटेशन हमें प्राप्त होती है, फूड हमें प्राप्त होता है, मेडिकल प्लांट्स हमें प्राप्त होते हैं. देन मिल्चिंग एनिमल प्रोवाइड अस द मिल्क. देखिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर आवर हेल्थ. आपके अंदर जो कैल्शियम होता है, जो लोग दूध, मिल्चिंग एनिमल्स हमें दूध प्रोवाइड करवाते हैं, एंड दुधारू जो पशु होते हैं, सो वी आर गेटिंग मिल्क फ्रॉम दैम, एंड the milk is helpful to strong our bones. तो हमारी bones होती हैं, हमें कैल्शियम की जो हमें आवश्यकता होती है, that we can get from the milk. Or those who are taking milk every day, they will never be deficient into the calcium. तो उनको कैल्शियम की कमी लगभग नहीं होती है, right?
सो दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द एनिमल। वो हमें कहाँ से मिल रहा है आपका? सो दिस इज द सोर्स ऑफ आवर हेल्थ एज वेल। देन एनिमल्स प्रोवाइड अस द ड्रॉट पावर। दिस इज ड्रॉट पावर मीन्स क्या है हमारे पास? हमें अगर कोई सामान को लोड करना है, कहीं पर ले जाना है, सो दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द एनिमल। लाइक हम हिमालयाज रीजन की बात करें, वहाँ पे जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर एनिमल को ही यूज किया जाता है। किसके लिए? आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, बस सामान को ढोने के लिए इनका यूज किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग यूज करते हैं, जनरली आप यूज करते हैं, आपका कैमल कार्ट हमारे पास है, बुलक कार्ट पहले यूज होता था, कैमल कार्ट स्टिल वी आर यूजिंग द कैमल कार्ट इनटू द विलेजेस। मीट एंड द एग, इसके अलावा जो हम नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उन लोगों को मीट है, एग है, ये सारी चीजें क्या है आपकी प्रोवाइड करवाई जाती है बाय द एनिमल्स। देन फिश प्रोवाइड्स न्यूट्रिशियस फूड। फिश के जो हमारे पास वैरायटीज हमने जानी थी, राइट, सो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फिशेस व्हिच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशियस फूड्स। और इसके अलावा जो सी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती है हमारे पास, वो इस पे डिपेंड करती हैं। देन इंसेक्ट्स हेल्प्स इन द पोलिनाइजेशन ऑफ द क्रॉप्स एंड द फ्रूट ट्रीज। अब सबको पता है आपका कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे बी हो गया या फिर बटरफ्लाई हो गया, ये क्या करते हैं आपका पोलिनाइजेशन। इट इज यू हैव स्टडीड इनटू द साइंस, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि आपका फ्लावर से सीड्स कैसे बनते हैं, तो वो पोलिनाइजेशन थ्योरी हमारे पास है, पोलिनाइजेशन प्रोसेस होता है, तो ये हेल्प करते हैं हमारे पास। और इंसेक्ट्स की वजह से ही जो हमारे पास फ्लावर्स हैं, दे कन्वर्ट इनटू द सीड्स, राइट। तो सिंपल सी बात है, दे आर हेल्पिंग इन एवरी एस्पेक्ट। तो हमें हर एक जगह हमारे क्या कर रहे हैं, आपका मदद कर रहे हैं, एंड वी नो दैट हाउ इंपॉर्टेंट दे आर। अब हमें समझ में आता है कितने इंपॉर्टेंट हैं। हमारी बात ये समझ में आ जाती है कि जो वेजिटेशन है या फिर वाइल्ड लाइफ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, बट व्हाट इज द आयरनी और विडम्बना की बात तो यही है कि वी पीपल आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्मिंग दैम। हम उनको क्या कर रहे हैं, पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे ही यूजेबल चीजें हैं और वो उनको हम ही लोग क्या कर रहे हैं आपका हार्मफुल। हम उनके लिए बड़े ही क्या कह सकते हैं आपका कि वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे बड़ा जो दुश्मन बना आपका ह्यूमन बीइंग अपने आप का खुद का दुश्मन बना हुआ है। सो ही इज एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग द नेचर। हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एंड दैट रिजल्टेड इन समवेयर आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट उसको हमें ही भुगतना पड़ेगा उसका। देखिए, डिस्पाइट हैविंग सच ग्रेट सिग्निफिकेंस, देखिए इतनी इंपॉर्टेंस होने के बाद भी फ्लोरा एंड फौना आर कंटिन्यूअसली अंडर द थ्रेट। तो ये कंटिन्यूअसली अंडर थ्रेट है। रीजन दैट्स आई हैव टोल्ड यू, मेजर रीजन तो हम खुद ही हैं कि हम जो अपनी फ्लोरा एंड फौना है उनको अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यूज करना इट्स ओके, बट हम उसको ओवर यूज कर रहे हैं, तो दैट इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन हम लोग कर रहे हैं। सो दैट इज नॉट गुड फॉर द ह्यूमन फ्यूचर। तो ये हमारे पास ह्यूमन के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। कैसे? देखिए क्या क्या थ्री टे फ्लोरा एंड फौना के लिए एवरी स्पीसीज इज इंपॉर्टेंट इन इकोसिस्टम, सो कंजर्वेशन इज एसेंशियल फॉर देम। अभी सिंपल सी बात है, हर एक स्पीसीज का अपनी इंपॉर्टेंस होती है इकोसिस्टम के अंदर, एंड उनका कंजर्वेशन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सी but due to the excessive exploitation of the plants and the animals by human being, they are continuously under threat। लेकिन हम लोग उनको कंटिन्यूस ह्यूमन बीइंग अपने यूज के लिए, अपने बेनिफिट के लिए उनका एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। जैसे मैंने पहले बोला कि यूज करना जब तक हमारे पास लिमिट है दैट इज फाइन, बट उसका एक्सेसिव जो वर्ड हमारे पास जुड़ जाता है, मतलब हम उनका अननेसेसरी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। यूजेज ज्यादा हो रहा है, आपका ग्रो कम हो रहे हैं। बहुत सारे मेडिकल प्लांट्स हैं वो हमारे खत्म होते जा रहे हैं, एनिमल है वो हमारे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो रीजन क्या हमारे पास? एक्सप्लॉइटेशन। हम लोग अपने जितना उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम है, जितना वो हमारा बर्थ ले पा रहे हैं, उससे ज्यादा हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर एक्सटिंक्टिंग और एंडेंजर्ड। इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या फिर वो एंडेंजर्ड है। क्या थ्रेट्स? देखिए, अब क्या थ्रेट्स है, देखिए हमारा एक डेटा दिया हुआ है, अबाउट 1300 प्लांट स्पीसीज आर एंडेंजर्ड। अगर हम बात करें इंडिया की, तो 1300 तरह की ऐसे प्लांट्स हैं जो एंडेंजर्ड हैं, मतलब वो खत्म होने के कगार पर है, कभी भी वो खत्म हो सकते हैं। 20 प्लांट स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट, और 20 ऐसे प्लांट्स हैं जो अभी हमारे इंडिया के अंदर नहीं पाए जाते हैं, वर्ल्ड में वो खत्म हो चुके हैं। जैसे लोटस कॉर्निकुलेटस एक फ्लावर था जो अब हमारे पास नहीं पाया जाता है। तो इस तरह की प्रजातियां जो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही हैं। सम एनिमल स्पीसीज आर ऑल्सो एंडेंजर्ड, बहुत सारे एनिमल के स्पीसीज हैं, जैसे देखो आपको पता है बंगाली टाइगर्स, लॉयंस, राइट, रेड पांडा, ये सबको क्या बचाने के लिए प्रोजेक्ट्स लाए। प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया हुआ है, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया हुआ है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल चलाए हुए हैं। तो ये प्रोजेक्ट चलाए हुए ताकि इनको बचाया जा सके, सो दैट वी कैन कंजर्व देम।
एंड दे आर सम ऑफ देम आर एक्सटिंक्ट, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे नाम दिया है पिंक हेडेड डक। पिंक हेडेड डक एक तरह डक की ही क्या कह सकते हैं प्रजाति थी, जो अभी हमारी नहीं मिलती है, जो पिंक हेडेड थी, राइट। सो सम ऑफ द कॉजेज ऑफ द थ्रेट्स आर, तो क्या कारण है कि धीरे धीरे करके ये हमारे जो एनिमल है या फिर वेजिटेशन है धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। तो कारण क्या है? द फर्स्ट थिंग इज हंटिंग बाय द ग्रीडी हंटर्स। ये सिंपल सी बात है, अगर वाइल्ड लाइफ हमारी खत्म हो रही है तो जो हंटर्स होते हैं वो कमर्शियल पर्पज के लिए इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन हॉर्न हाइनोज है तो उसका सींग काट दिया जाता है जो मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। देन एनिमल के जो बाक्स होते हैं या फिर स्किन जो होती है उनको घर में आपका डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है, या फिर दूसरे जो मेडिकल पर्पज से इनको यूज किया जाता है, हाथी दांत वगैरह है जिनका लोग यूज करते हैं। तो कमर्शियल पर्पज से लोग अपने लालच को पूरा करने के लिए इनको क्या कर रहे हैं, आपका मार रहे हैं, और धीरे धीरे करके उनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है। देन पॉल्यूशन ड्यू टू द केमिकल एंड द इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब सबको पता है आपका हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन में लोग आ गए हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हम बनते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके हमें इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करना पड़ रहा है। इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने से क्या हो रहा है, हमारे पास जो पॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या आपका बढ़ता जा रहा है। केमिकल्स हैं, केमिकल्स जो हम लोग जैसे हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जो हम लोग एग्रीकल्चर पर्पज से यूज करें प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो हमें हम भी पहुंचा रहे हैं। आपका जो उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जो केमिकल की वजह से क्या होते हैं, मर जाते हैं, और धीरे धीरे करके उनका सिस्टम क्या होता है, खत्म। जैसे आपको पता है अर्थवॉर्म जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ की या सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके पेस्टिसाइड्स यूज करने की वजह से वो खत्म होता चला गया। अब उनके लिए स्पेशल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट पे उनकी क्या की जाती है, आपका हार्वेस्टिंग की जाती है। ऐसे इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं जहां मर्जी वहां फेंक दिए जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है आपका एसिडिक डिपोजिट्स बाय द इंडस्ट्रीज। अब देखिए सिंपल सी बात है, जो बहुत सारी कंपनियां जो एसिडिक डिपोजिट्स निकालती हैं, एसिडिक्स निकालती हैं और उनको क्या करते हैं चैनल्स यानी कि रिवर्स होती है उनमें मिला दिया जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं आपका जो एसिड उस वाटर बॉडीज में मिलाया गया है वो काफी दूर तक बह के जाएगा, जहां जहां पर बह के जाएगा वहां पे फ्लोरा है या फिर फोना जो है एनिमल है उस पानी को पियेंगे तो कहीं ना कहीं उनमें भी वो बदलाव आएंगे और चेंजेस आएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी प्रजातियां खत्म हो रही हैं। देन इंट्रोडक्शन ऑफ द एलियन स्पीसीज। अब ये क्या हमारे पास, जैसे मैंने कल बताया बायोम सिस्टम हमारे पास है, या फिर कहते हैं कि इकोसिस्टम होते हैं, रमणस्थल राजस्थान हमारे पास, जो हिमालय हो गया, दक्कन का प्लेटू हो गया, गंगा का प्लेन हो गया, ईस्टर्न स्टेट्स हो गया हमारे पास, या फिर हमारे पास आइलैंड स्टेटस हो गए। अगर इनमें ऑटोमेटिकली कोई दूसरी तरह की स्पीसीज आ जाती है, एलियन स्पीसीज मतलब कोई दूसरे प्लेनेट से आ रही नहीं, दूसरे इकोसिस्टम्स के एनिमल्स या प्लांट जब इस सिस्टम में चले जाते हैं, किसी इकोसिस्टम में चले जाते हैं, तो वहां पर की स्पीसीज भी काफी ज्यादा लॉस होता है, जिसकी वजह से वहां की स्पीसीज को क्या करते हैं आपका अपना हॉस्टेज कर लेते हैं, और धीरे धीरे करके उस स्पीसीज क्या हो जाती है हमारे पास वहां पर खत्म हो जाती है, जो स्पीसीज वहां की ओरिजिन थी, लेकिन एलियन स्पीसीज वहां पे सर्वाइव करना शुरू कर दी। तो इसकी वजह से भी हमारे पास क्या हो रहा है, जो हमारा थ्रेट है या जिसकी वजह से हमारी जो स्पीसीज वो खत्म होती जाए। देन रेकलेस कटिंग ऑफ द ट्रीज फॉर द कल्टीवेशन एंड द हैबिटेट। ये आप सबको पता है, पॉपुलेशन हमारे पास इंक्रीज हो रही है, फूड की डिमांड बढ़ रही है, फूड की डिमांड को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, वी आर ट्राइंग टू व्हाट, we are trying to fulfill our demand, so we are cutting the trees and cultivation and the habitats, या फिर फसलों के लिए, क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए, या फिर हैबिटेट्स अपने घर बनाने के लिए हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से भी धीरे धीरे करके जो हमारी वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है वो खत्म होती जा रही है। आपका वेजिटेशन वैसे खत्म हो जाती है, प्लस पेड़ काटने की वजह से, जो वेजिटेशन काटने की वजह से जहाँ पे एनिमल का हैबिटेट था, रहने के लिए जो जगह मिलती थी वो खत्म हो रही है, तो धीरे धीरे करके ये सारा हमारा सिस्टम खत्म होता जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो थ्रेट वो यही है कि हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सबसे बड़ा जो डेंजर है एनिमल के लिए या वाइल्ड लाइफ के लिए वो है हमारे पास है उनके हैबिटेट का लॉस हो जाना, मतलब उनको रहने के लिए जगह न मिलना, क्योंकि हम लोग कल्टीवेशन की वजह से या फिर लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसमें घर वगैरह बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं। फॉरेस्ट को क्लियर करना वन रीजन, हम वेजिटेशन को लॉस कर रहे हैं। सेकंड रीजन, उस रीजन में जो स्पीसीज रहती थी वो धीरे धीरे करके वहां पे क्या होती जा रही, खत्म होती जा रही। सो दीज वर द थ्रेट्स टू द वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशंस। वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इज टू कंजर्व दीज स्पीसीज। हमें ये समझना पड़ेगा कि इन स्पीसीज को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। तो कंजर्वेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे।
See you next time. If you have any query, you can contact. One more thing I would like to tell you that एक आपका ऐप के अंदर एक नया पॉइंट हमने ऐड किया है सिलेबस का. सो यू कैन सी देयर सिलेबस फॉर द नेक्स्ट टेस्ट. जो आपका टेस्ट आ रहा है 20 मार्क्स का, उसमें आप वहां पे देख सकते हैं. प्रोबेबली आई हैव टेकन द चैप्टर नंबर सेम. जो हम पढ़ रहे हैं यही चैप्टर हमने आपका स्टडी के लिए लिया हुआ है. आपका टेस्ट इसी चैप्टर से आएगा, natural vegetation and the wildlife. So be prepared for the test. 19th of December you will be getting your MCQs test of SST. That's all for the day. Thank you. See you next time. Bye. See you.